The crowd is pouring in, thronging to the Randhir Verma Stadium in the colorful attires and the tri-colored zeal, and also the VIP enclave is gradually filling up. In a short while from now, as we await the arrival of the Honorable DC of Dhanbad, we will begin the national celebration. We heartily welcome the Honorable SP, City and Rural of Dhanbad, Madam Reshma Rameshan, to this venue, to this celebration. स्वतंत्रता दिवस की आप सभी धनबाद नगरवासियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आज का दिन अपने गौरवशाली इतिहास को नमन करने का है, वीर शहीदों को नमन करने का है। अपने देश के वीर सैनिकों के सम्मान में उनकी कर्तव्य निष्ठता को नमन करती हुई ये चंद पंक्तियां हैं। हम प्रभात की नई किरण हैं, हम प्रभात की नई किरण हैं, हम दिन के आलोक नवल, हम नवीन भारत के सैनिक, धीर वीर गंभीर अचल, धीर वीर गंभीर अचल। हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्रि के, हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्रि के, सुरभि स्वर्ग की लेते हैं। हम हैं शांति दूत धरणी के, छाह सभी को देते हैं, छाह सभी को देते हैं। वीर प्रसू माँ की आंखों के, वीर प्रसू माँ की आंखों के, हम नवीन उजियाले हैं। गंगा यमुना हिंद महासागर के, गंगा यमुना हिंद महासागर के, हम तत्पर रखवाले हैं, हम तत्पर रखवाले हैं। आज के दिन हम सभी यहां शामिल हो रहे हैं जिला स्तरीय मुख्य समारोह में।
The Honorable DC seems to be arriving at the venue. In a couple of moments, in a couple of seconds, he'll be here and he'll be greeted by the dignitaries present here. And soon you will hear the bugle calls and the event, the national celebration, will begin. Ladies and gentlemen, brace yourselves. हमारे बीच आदरणीय उपायुक्त महोदय की गरिमामय उपस्थिति हो चुकी है। The Honorable स्वतंत्रता दिवस समारोह परेड पर 10 प्लाटून आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। The Honorable DC of our district, Shri Sandeep Singh, is being formally invited by the Chief Parade Commander Sergeant Major Umesh Kumar Orao for the inspection of the platoons. He is being accompanied by the SP of the city, Srimati Reshma Rameshan. Passing by the saluting base, the inspection gypsy, heading towards the 10 platoons standing in attention to greet the Honorable DC of Dhanbad. The first platoon is that of CRPF, the second of CISF, the third of RPSF, the fourth of District Armed Police Men, the fifth of District Armed Police Women's Wing, the sixth of the Indian Home Guard, the seventh platoon is that of the NCC Boys, the eighth of the NCC Girls, the 9th of the Indian Scout and Guide Girls Wing, the 10th of the Indian Scout and Guide Boys Wing. They are being commanded by the Chief Parade Commander Sergeant Major Umesh Kumar Orao and being assisted by Sergeant Masang Hansda. आज के परेड में शामिल ये पहला प्लाटून सीआरपीएफ का 1949 से अस्तित्व में आकर लगातार संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा कर रहे हैं। आज के परेड में शामिल ये दूसरा प्लाटून सीआईएसएफ का जो 1969 से लगातार औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में लगी हुई है। इसी क्रम में तीसरा प्लाटून आरपीएसएफ रेल मंत्रालय के लिए कार्यरत है। चौथा प्लाटून डीएपी जिला सशस्त्र पुलिस जिले में शांति व्यवस्था कायम करना इनका लक्ष्य। इसी क्रम में पांचवा प्लाटून जो जिला सशस्त्र महिला पुलिस का है। इसी क्रम में छठा प्लाटून होमगार्ड का जो 1946 से
अर्धसैनिक बलों के रूप में स्थानीय पुलिस की लगातार सहायता करते आ रहे हैं। इसी क्रम में 7वां प्लाटून जो एनसीसी बॉयज का है या भारत का सैन्य कैडेट कोर है, जो छात्र छात्राओं को सैन्य प्रशिक्षण देता है। इसी क्रम में 8वां प्लाटून एनसीसी गर्ल्स का, और आज के परेड में शामिल होने वाला ये 9वां प्लाटून भारतीय स्काउट एंड गाइड की। इसकी स्थापना 1950 में हुई और ये 10वां प्लाटून भारतीय स्काउट एंड गाइड की। और आज के इस मुख्य समारोह में ये बैंड कोलफील्ड स्कूल सरायकेला की है, जिसे लीड करें मास्टर श्री मुकुल कन्नड़। Freedom has only one motto. May our motherland be proud and prosperous. Ladies and gentlemen, it is time now for the national salute as the Honorable DC of our district makes his way back to the saluting base, accompanied by the SP of the district, Srimati Reshma Rameshwar. The Honorable DC of Dhanbad will do the honor of hoisting our national flag here at the Randeer Verma Stadium Ball Ground. You are all requested to pay your reverence to the motherland simultaneously. स्वतंत्रता दिवस समारोह के आज के इस पावन अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, सभी पदाधिकारीगण, धनबाद जिले के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए सभी देवियों, सज्जनों, मीडिया के प्रतिनिधिगण,
आप सभी को स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आज का यह अवसर विशिष्ट है क्योंकि हम लोग देश के स्वतंत्र होने के, इसके आज़ाद होने के 75 वर्ष पूरे होने की वर्षगांठ मना रहे हैं। और इसी अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में लोगों में और जागरूकता हो और जिज्ञासा हो, उसको बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हर घर झंडा अभियान के तहत इस वर्ष देश के अलग अलग हिस्सों में और उसी कड़ी में धनबाद जिले में सभी जगहों पर, सभी सरकारी कार्यालय, सभी लोगों ने अपने घरों पर, स्थानों पर आज़ादी का अमृत महोत्सव को मनाने के क्रम में प्लास्टिक लगाए हैं, झंडा लगाया है। यह भारत की सांस्कृतिक उपलब्धियों और गौरवशाली इतिहास को जन जन तक पहुँचाने, लोगों को उसके बारे में जागरूक करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास था। आज के इस पावन अवसर पर आइए हम सब संकल्प लें कि राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र के विकास में हमारी अपनी क्या भूमिका हो सकती है, उसको हम कैसे और बेहतर बना सकते हैं, उसकी समीक्षा करें और अपने को खुद संकल्पित करें इस चीज़ के लिए कि राष्ट्र के लिए जो भी हमारे सामर्थ्य में हो वो हम अपना देने के लिए तैयार हैं। धनबाद जिला प्रशासन आप सभी नागरिकों के सहयोग से अलग अलग विभागों के माध्यम से अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं और विकास के कई कार्यक्रम हैं जिनका क्रियान्वयन किया जा रहा है। विशेष रूप से विकास की इस प्रगति में, इस यात्रा में जो लोग अपेक्षाकृत पीछे रह रहे हैं उनको केंद्र में रखते हुए लास्ट में फर्स्ट के आधार पर योजनाओं की प्लानिंग और उनका कार्यान्वयन किया जा रहा है। हाल ही में जब 2 वर्षों में पूरे विश्व में कोरोना की महामारी का दंश झेला है और अब हम लोग उससे बचाव के लिए लोगों को वैक्सीनेशन उपलब्ध हो, आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो, वो सभी प्रशासन के द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है। इस कड़ी में धनबाद जिले में अब तक लगभग 30 लाख वैक्सीन की डोजेज प्रधानमंत्री और डोजेज को मिला है लोगों को दिया जाती है। और आज के इस अवसर पर फिर से सभी से अपील है कि सभी लोग जो अभी तक चाहे वैक्सीन उन्होंने नहीं लिया है या सेकंड डोज का फर्स्ट डोज जो है वो आप जरूर लें ताकि इस महामारी की चिंता से आप स्वयं भी बच सकें, अपने परिवार को, देश को हम लोग बचा सकें। विकास की अन्य योजनाओं के क्रम में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट, जैसा हम सभी जानते हैं कि धनबाद एक खनिज बाहुल्य जिला है और इस योजना के तहत रॉयल्टी का एक निश्चित प्रतिशत इस ट्रस्ट को प्राप्त होता है, जिसका उत्तरदायित्व जिले की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार योजनाओं को चिन्हित करना, आवश्यकताओं का आकलन करना और उनका कार्यान्वयन किया जाना है। विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, महिला और बाल विकास, पेयजल और आधारभूत संरचनाओं का विकास इस स्कीम के तहत मेन फोकस किया जा रहे हैं। धनबाद जिले में अलग अलग श्रेणी के लीडर स्कूल्स को चिन्हित कर उनको आदर्श स्कूलों में विकसित करने की योजनाएं दी गई हैं, जिसके तहत प्रथम चरण में 58 लीडर स्कूल्स में करीब 51 करोड़ रुपए की राशि से कार्यान्वयन के कार्य प्रारंभ किए गए हैं। अन्य चरणों में आने वाले समय में किए जाने वाले स्कूलों में आकलन आदि तैयारी का कार्य चल रहा है। इसी तरह जिले में अवस्थित सभी कस्तूरबा और आवासीय विद्यालयों में मूलभूत आवश्यक सुविधाएं लाइब्रेरी आदि उपलब्ध कराने के लिए लगभग 9 करोड़ की लागत राशि से स्कूलों में अपग्रेडेशन का कार्य किया जा रहा है। पेयजल आपूर्ति धनबाद जिले में कई से दी जाने वाली योजनाओं का सबसे प्रमुख फोकस किया रहा है और इस कड़ी में हम लोगों ने धनबाद जिले में छोटी बड़ी सब योजनाएं मिलाकर लगभग 1200 करोड़ की योजनाएं अलग अलग क्षेत्रों में दी हैं। आने वाले समय में उद्देश्य ये है कि हर घर जल नल के माध्यम से धनबाद जिले के घर को उपलब्ध हो, इस उद्देश्य के साथ, इस लक्ष्य के साथ हम लोग
पर्यटन के क्षेत्र में जिला योजना पर्यटन निधि में जो राशि रहती है उससे CSR के मद से और अन्य स्रोतों से कन्वर्जेंस कर यहाँ के लोगों को पर्यटन स्थल है दलदली आश्रम आदि इनके विकास की योजनाएं भी तैयार कर उनके कार्यान्वयन का कार्य किया जा रहा है। सभी को पर्याप्त अनाज उपलब्ध हो, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा इस कड़ी में धनबाद जिले में सभी योग्य लाभुकों को चिन्हित कर उनको राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। और वैसे लोग जो किसी कारण से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के नेट से उसके आश्रम से बाहर हैं, उनको चिन्हित करते हुए राज्य सरकार ने महत्वाकांक्षी झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लगभग 76,000 बीपी राशन कार्ड एकत्र करते हुए लगभग सेलिब्रेशन बोर्ड में धनबाद जिला में सभी योग्य व्यक्तियों को राशन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 18,70,360 कुल लोग अलग अलग विभागों के इस योजना से आच्छादित हैं, जिनमें लगभग 4,11,000 PH कार्ड, 32,000 दूसरे कार्ड और इस कार्ड कुल 4,44,000 राशन कार्ड हैं, जिनके माध्यम से लोगों को खाद्यान्न अलग अलग योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। सोना सुमरन घोषणा योजना के अंतर्गत धनबाद जिले में अब तक 2,285 साड़ी और 1,36,000 धोती और करीब 74,000 लुंगी का वितरण अलग अलग क्षेत्रों में जो योग्य व्यक्ति हैं उनको किया गया है। धनबाद जैसा हम सभी जानते हैं कि ये औद्योगिक शहर है, माइनिंग और अन्य औद्योगिक कार्य में बड़े पैमाने पर होते हैं। परिवहन हमेशा यहाँ एक चैलेंज रहा है। यातायात की समस्या से कैसे लोगों को निजात मिले, इसके लिए बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स यातायात के राज्य सरकार के निर्देश में जिला स्तर पर कार्यान्वित करने की योजना बनाई जा रही है। इसी कड़ी में प्रदूषण को कम करने के लिए CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना ये प्रमुख कार्यबिंदु है और उसके तहत धनबाद जिले में अब तक लगभग 1,000 से अधिक इलेक्ट्रिक और CNG नॉन पेट्रोल और डीजल वाहन उनका डेवलपमेंट किया गया है। बैंक क्रेडिट लिमिटेड आवश्यकता जो है उनको समय पर सुविधानुसार लोन उपलब्ध हो, क्रेडिट उपलब्ध हो, चाहे खेती से जुड़े हुए किसान हो, मत्स्य पालन से जुड़े हुए लोग हों, पशुपालन से जुड़े हुए लोग हों, स्वयं सहायता समूहों की सशक्त महिलाएं, उनको चिन्हित करते हुए अलग अलग क्रेडिट स्कीम के संबंध से बैंकों को द्वारा लोन के लाभ दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत धनबाद जिले में अब तक लगभग 30,000 लाभुकों को 135 करोड़ रुपए दिया गया है। महिला स्वयं सहायता समूहों को लगभग 2200 महिला स्वयं सहायता समूहों को बैंकों को जोड़ते हुए करीब 19 करोड़ की राशि लोन के रूप में दी गई है, जिससे वो अलग अलग कार्य करके स्वावलंबी और सेल्फ सफिशिएंट बन रहे हैं। अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं को लघु उद्योग स्थापित करने के लिए स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम के तहत ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत धनबाद जिले के हर एक योग्य कृषक, मत्स्य पालक, पशुपालक व अन्य जो योग्य योजना से जुड़े लोग हैं उनको लाभ मिले। इसके तहत लगभग 4,500 लाभुकों को करीब 12 करोड़ की राशि JC के माध्यम से दी गई है और 100% सैचुरेशन सभी का हो, इस पर जिला प्रशासन द्वारा कार्य किया जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा विभाग के द्वारा प्रत्येक वृद्ध, वृद्धा, विधवा, दिव्यांग, अन्य जो श्रेणी से जुड़े हुए लोग हैं जिनको सरकारी योजना के अनुसार आच्छादन से आच्छादित किया जा रहा है, उनको पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। और विशेष रूप से हाल में सरकार द्वारा लॉन्च की गई सार्वभौम पेंशन योजना, जिसके तहत कोई भी योग्य लाभुक नहीं छूटे, कोई टारगेट का बंधेज नहीं रहे, उसके तहत धनबाद जिले में बड़े पैमाने पर लोगों को चिन्हित करते हुए पेंशन योजनाओं से जोड़ा गया है और अब तक करीब 1,70,000 लाभुक हैं जिनको पेंशन के अलग अलग योजनाओं के माध्यम से लाभ दिया जा रहा है। धनबाद मुख्य शहरी
जिला भी है जहाँ बड़ी संख्या में जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। धनबाद नगर निगम द्वारा शहरी क्षेत्रों को विकास और सौंदर्यीकरण हेतु लगभग 24,000 स्ट्रीट लाइट्स, 90 हाई मास्ट लाइट्स स्थापित की गई हैं व इनके अतिरिक्त लगभग 16,000 स्ट्रीट लाइट्स के अन्य स्थापना और 48 अन्य हाई मास्ट स्ट्रीट लाइट के स्थापना का कार्य प्रक्रियाधीन है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में सभी लोगों के पास अपना आवास उपलब्ध हो, इसके लिए लगभग 6,250 आवासों को पूर्ण कर लोगों को प्रवेश कराया गया है और 360 नए आवासों की स्वीकृति की जा रही है। 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत शहर के विकास हेतु आज हम लोग जहां एक कार्यक्रम कर रहे हैं, गोल्फ ग्राउंड शहीद रणधीर वर्मा स्टेडियम का सौंदर्यीकरण का कार्य पूर्ण किया गया है और बहुउद्देशीय सांस्कृतिक भवन का निर्माण भी यहाँ प्रगति पर है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा ग्रामीण विकास क्षेत्र में पिछले वर्ष में लगभग 15,051 स्वीकृत आवासों के विरुद्ध हाल के वर्षों में जो लक्ष्य जिलों को प्राप्त हुए हैं उसमें करीब 7,900 लगभग 8,000 की सीमा तक हम लोग आवास पूर्ण से इसका कार्य प्रगति पर है। कृषि विभाग द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत जिले में लगभग 80,000 लाभुकों को चिन्हित किया गया है, उनको पीएम किसान योजना का लाभ दिया जा रहा है और इसमें 51,800 लाभुकों को अलग अलग पीएम किसान के माध्यम से, राज्य सरकार की योजना के माध्यम से, केसीसी योजनाओं से आच्छादित किया गया है। झारखंड राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी कृषि ऋण माफी योजना के तहत अभी तक लगभग 7,302 किसानों को कुल 25.5 करोड़ के ऋण माफी की कार्य किया गया है, अन्य प्रक्रियाधीन है। पेयजल एवं स्वच्छता क्षेत्र में जैसे मैंने डीएमएफटी योजनाओं के उल्लेख के समय बताया कि हर घर को पाइप वाटर सप्लाई के माध्यम से जल उपलब्ध हो, ये सरकार का प्रयास है। कुछ बड़ी योजनाएं जो धनबाद जिले में भी प्रक्रियाधीन है, जिनका कार्य चालू है, उसमें टुंडी एवं पूर्वी टुंडी अंतर्गत पूर्ण आच्छादन ग्रामीण जलापूर्ति योजना, बागमारा प्रखंड अंतर्गत संपूर्ण आच्छादन ग्रामीण जलापूर्ति योजना फेज 2 है। इन योजनाओं के पूर्ण होने से लगभग 45,000 नए घरों को इन क्षेत्रों में पाइप वाटर के माध्यम से जल की सप्लाई होगी। इसी तरह शहरी क्षेत्र में लगभग 8,203 घरों के कनेक्शन का कार्य हाल के वर्ष में पूर्ण किया गया है और शेष अन्य छूटे हुए घरों को आच्छादित करने का काम किया जा रहा है। इसी तरह तोपचाची में ग्रामीण जलापूर्ति योजना, इससे ये बृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना है जिससे करीब 22 गांव लाभान्वित होंगे जिनको पाइप वाटर के माध्यम से जल मिलेगा। बलियापुर प्रखंड में जलापूर्ति योजना का फेज 2 प्रक्रियाधीन है जिससे 26 गांव आच्छादित होंगे और करीब 66,000 आबादी इस योजना के आच्छादन, इसके कार्यान्वयन पूर्ण होने पर आच्छादित होगी। राज्य आपदा मोचन निधि के तहत कोविड-19 के इस काल में जिनकी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है, वैसे मृतकों के आश्रितों को चिन्हित करते हुए उनको 50,000 रुपए की सहायता राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा चुकी है। सड़क क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कई योजनाएं या तो प्रक्रियाधीन है या हाल में वो चालू की गई हैं और इसी कड़ी में नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा खैरा टुंडा बरवाडा सेक्शन गोविंदपुर 4 NH-32 बरवाडा पानागढ़ बाईपास एडीबी परियोजना का कार्य हाल में पूर्ण किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में अलग अलग स्कूलों के विकास का कार्य, सरकारी योजनाओं से विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण का कार्य जिले में अलग अलग क्षेत्रों में किया जा रहा है। कल्याण विभाग द्वारा प्री मैट्रिक एवं प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत हाल के वर्ष में लगभग 1,22,000 छात्र छात्राओं को और प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत 15,201 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति उनके खाते में भुगतान किया गया है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना एक अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत धनबाद जिले में अनुसूचित जाति के 91 लाभुक, अनुसूचित जनजाति के 24 लाभुक, पिछड़ी जाति के 113, दिव्यांग अल्पसंख्यक समुदाय के लाभुकों को ऋण की स्वीकृति
दी गई है। जिले में लगभग 80 विद्यालय हैं जहां इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT के माध्यम से, स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से जो रूटीन शिक्षा प्रणाली है उसके अतिरिक्त, उसके एडिशन में कार्य किए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में कुछ और विद्यालयों को इस योजना से जोड़ने का कार्य चालू है। आज हम लोग आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इसमें इस कड़ी में ज़रूर हमको, आपको, लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि धनबाद जिले का देश के स्वतंत्रता संग्राम में बड़ा ही महत्वपूर्ण इतिहास रहा है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बहुत नामचीन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, बड़े लोग यहाँ आए, यहाँ के जीवन से संबद्ध हुए, यहाँ उन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ की हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का धनबाद जिले से स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बड़ा विशेष संबंध रहा है। वर्ष 1930 से 1941 के बीच उनका कई बार इस जिले में आना हुआ। धनबाद जिले में ये अवस्थित गोमो रेलवे स्टेशन का नाम उन्हीं के नाम पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेशन रखा गया है। यहीं से भारतवर्ष में उनके अंतिम बार होने का जो साक्ष्य है, वर्ष 1941 में उन्होंने यहाँ से पठानकोट के लिए ट्रेन पकड़ी थी। यहाँ का जो इतिहास रहा है, आज एक ऐसा अवसर भी है कि हम लोग उसको याद करें, उसको जानें। महात्मा गांधी जी का भी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान धनबाद जिले से संबंध रहा है। धनबाद जिले के अपने कई वीर सपूत हुए हैं, कई महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं, जिन्होंने अलग अलग समय पर अलग अलग कार्यों के माध्यम से देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपना महती योगदान दिया है। आज के इस अवसर पर सभी धनबाद जिले वासियों की तरफ से हम लोग उनका अभिनंदन करते हैं, उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जिले में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस के नेतृत्व में जिला पुलिस पूरे मनोयोग से अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था का निर्धारण के लिए कार्य कर रही है। सभी मीडिया के मित्रों का, प्रेस के बंधुओं का, आप लोगों के जिला प्रशासन को मिल रहे नियमित सहयोग व समन्वय के लिए भी आज के इस अवसर पर मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, आपको आभार करता हूँ। पुनः एक बार सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, अपने सभी उन पूजनीय पूर्वजों को याद करते हुए, जिनके त्याग व बलिदान के कारण आज हम लोग स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उनको याद करें हम लोग और फिर से एक बार संकल्प लें कि देश के विकास में, देश के उसको आगे बढ़ाने में, उसके उत्थान में कैसे अपना योगदान दे सकें। इसी के साथ पुनः एक बार सभी को याद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। Thank you, sir. We are grateful to your dynamic administration and visionary words. Thank you, sir. हम परेड विसर्जन के लिए तैयार हैं। जय श्रीमान। आज के इस समारोह में अब बारी है सम्मानित करने की धनबाद के वरिष्ठ
स्वतंत्रता सेनानी जो हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, श्रीमती कनकलता दा एवं श्रीमती सरस्वती देवी। निवेदन आदरणीय उपायुक्त महोदय से आप सम्मानित करेंगे। आदरणीय उपायुक्त महोदय से एवं मंचासीन वरिष्ठ अधिकारियों से निवेदन, हम सम्मानित कर रहे हैं हमारे साथ उपस्थित वरिष्ठ आश्रित स्वतंत्रता सेनानी श्रीमती कनकलता दा एवं श्रीमती सरस्वती देवी। धनबाद के लिए गौरव क्षण आज के इस मुख्य समारोह में हम सम्मानित कर रहे हैं धनबाद के स्वतंत्रता सेनानी श्रीमती कनकलता दा एवं श्रीमती सरस्वती देवी। आज के इस समारोह में हम सभी सम्मानित कर रहे हैं धनबाद के गौरव श्रीमती कनकलता दा एवं श्रीमती सरस्वती देवी, जो स्वतंत्रता सेनानी हमारे साथ मौजूद हैं आज के इस कार्यक्रम में। अब बारी है सम्मानित करने की धनबाद जिला के मेधावी छात्रों को, छात्राओं को, और इस क्रम में जैक बोर्ड द्वारा आयोजित 10th की परीक्षा में, माध्यमिक की परीक्षा में जो जिला की टॉपर हैं रीना कुमारी, जो प्रस्तावित संत जेवियर्स स्कूल गादी टुंडी की छात्रा हैं, एक जोरदार तालियों से आप इनका उत्साहवर्धन करेंगे। सर्टिफिकेट और इसी क्रम में जो 12th की विज्ञान की टॉपर है, जैक टॉपर है पायल कुमारी, जो +2 उच्च विद्यालय बलियापुर की छात्रा है। ये मेधावी छात्रा है जिले की। इसी क्रम में हम सम्मानित कर रहे हैं 12th कॉमर्स की जैक टॉपर अपर्णा पांडे को, जो DAV +2 उच्च विद्यालय कतरासगढ़ की छात्रा हैं। और इसी क्रम में कॉमर्स में ही समान अंक प्राप्त करने वाली प्रगति गुप्ता, जो DAV +2 उच्च विद्यालय कतरासगढ़ की स्टूडेंट हैं। और इसी क्रम में 12th आर्ट्स जो जैक द्वारा आयोजित बोर्ड के टॉपर है, जिला टॉपर है सोमा कुमारी, KGVV बलियापुर के स्टूडेंट हैं। ये वक्त हम सम्मानित कर रहे हैं धनबाद जिले के मेधावी छात्राओं को, जिन्होंने जैक बोर्ड की आयोजित परीक्षा में जिले में टॉप की हैं। अब बारी है सम्मानित करने की उन शिक्षिकाओं को जिन्होंने जिले का नाम रोशन किया, और इस क्रम में सबसे पहला नाम है श्रीमती बसंती कुमारी, जो शिक्षिका हैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय रोहड़ा बांध झरिया की, डिफरेंटली एबल्ड हैं। ये पैरों से शिक्षण कार्य करती हैं, इनकी उत्कृष्टता को नमन। आप शिक्षिका हैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय रोहड़ा बांध झरिया की। हम सम्मानित कर रहे हैं जिले के उत्कृष्ट शिक्षकों को। इसी क्रम में अगला नाम है श्री लीलचंद रजवार, जो शिक्षक है मध्य विद्यालय अपर कांडरा झरिया के। श्रीमती सुषमा तिर्की, जो कैंसर की जंग से जीतकर आज भी शिक्षण दायित्व को निभा रही हैं। अगला नाम श्रीमती सुषमा तिर्की। और इसी क्रम में चौथा नाम है श्रीमती सरिता हांसदा,
जो गाना गाकर बच्चों की भाषा में ही शिक्षण कार्य संपन्न करती हैं, श्रीमती सरिता हांसदा। जी हां, हम सम्मानित कर रहे हैं जिले के उत्कृष्ट शिक्षकों को जो बखूबी अपने शिक्षण दायित्व को निभा रहे हैं। ये शिक्षक थे अब हम सम्मानित करेंगे जिला प्रशासन के जो हमारे पदाधिकारीगण जिन्होंने अपनी उत्कृष्ट सेवा दे रहे हैं। और इस क्रम में सबसे पहला नाम है श्री मृत्युंजय कुमार पांडे। श्री मृत्युंजय कुमार पांडे जो उप निर्वाचन पदाधिकारी धनबाद के पद पे हैं। श्री मृत्युंजय कुमार पांडे, एक जोरदार तालियों से आप इनका सम्मान करें। श्री मृत्युंजय कुमार पांडे। इसी क्रम में अगला नाम है श्री सुशांत कुमार मुखर्जी। श्री सुशांत कुमार मुखर्जी जो कार्यपालक दंडाधिकारी धनबाद के रूप में सेवा दे रहे हैं। श्री सुशांत कुमार मुखर्जी। इसी क्रम में अगला नाम है श्री प्रमेश कुशवाहा। श्री प्रमेश कुशवाहा जो अंचल अधिकारी झरिया के रूप में कार्यरत हैं। श्री प्रमेश कुशवाहा। इसी क्रम में अगला नाम है श्रीमती साधना कुमारी जो जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी धनबाद है। इसी क्रम में अगला नाम है श्रीमती स्नेहा कश्यप। श्रीमती स्नेह कश्यप जो जिला समाज कल्याण पदाधिकारी धनबाद है। श्रीमती स्नेह कश्यप जिला समाज कल्याण पदाधिकारी। इसी क्रम में अगला नाम है श्री अंशु कुमार पांडे कार्यपालक दंडाधिकारी धनबाद। श्री अंशु कुमार पांडे कार्यपालक दंडाधिकारी धनबाद। आज के समारोह में हम सम्मानित कर रहे हैं श्री विनोद कुमार कर्मकार जो प्रखंड विकास पदाधिकारी 11 कुंड ब्लॉक से हैं। श्री विनोद कुमार कर्मकार। श्री विनोद कुमार कर्मकार। श्री आनंद कुमार झा। अगला नाम श्री आनंद कुमार झा जो उच्च वर्गीय लिपिक जिला गोपनीय शाखा में कार्यरत हैं। श्री आनंद कुमार झा उच्च वर्गीय लिपिक जिला गोपनीय शाखा। एक बार जोरदार तालियों से आप इनका उत्साहवर्धन करेंगे, इनका सम्मान करेंगे। इसी क्रम में अगला नाम श्री सुभाष रजक अनुसेवक जिला गोपनीय शाखा। श्री सुभाष रजक जी, एक बार जोरदार तालियों से आप इनका उत्साहवर्धन करें। श्री सुभाष रजक अनुसेवक जिला गोपनीय शाखा। इसी क्रम में अगला नाम श्री प्रभु राम। श्री प्रभु राम अनुसेवक नजारत। श्री प्रभु राम अनुसेवक नजारत। इसी क्रम में अगला नाम श्री ललित चंद्र डे। श्री ललित चंद्र डे तकनीकी सहायक डीआरडीए हम सम्मानित कर रहे हैं। श्री ललित चंद्र डे तकनीकी सहायक डीआरडीए। इसी क्रम में अगला नाम श्री ओम प्रकाश सिंह। श्री ओम प्रकाश सिंह कार्यालय अधीक्षक विकास शाखा धनबाद। एक जोरदार तालियों से आप इनका उत्साहवर्धन करेंगे। श्री ओम प्रकाश सिंह कार्यालय अधीक्षक जिला विकास शाखा धनबाद। इसी क्रम में अगला नाम श्री राजेश कुमार केवट। श्री राजेश कुमार केवट कंप्यूटर ऑपरेटर विकास शाखा। श्री राजेश कुमार केवट कंप्यूटर ऑपरेटर विकास शाखा। इसी क्रम में अगला नाम श्री मनीष कुमार। श्री मनीष कुमार लेखा पदाधिकारी डीआरडीए। श्री मनीष कुमार लेखा पदाधिकारी डीआरडीए। जोरदार तालियों से आप इनका उत्साहवर्धन करेंगे, इनका सम्मान करेंगे। इसी क्रम में अगला नाम श्री सुरेश बावरी। श्री सुरेश बावरी कंप्यूटर ऑपरेटर। श्री सुरेश बावरी जी, जोरदार तालियों से आप इनका उत्साहवर्धन करेंगे। अब बारी है एसएनएमसीएच। अब बारी है सम्मानित करने की एसएनएमसीएच विभाग के जो हमारे डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर दिनेश कुमार गिंदौरिया सह प्राध्यापक एसएनएमसीएच धनबाद। जोरदार तालियों से आप इनका उत्साहवर्धन करेंगे। डॉक्टर दिनेश कुमार गिंदौरिया। इसी क्रम में अगला नाम डॉक्टर अमरेंद्र कुमार सिंह।
डॉक्टर अमरेंद्र कुमार सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी एसएनएमसीएच। इसी क्रम में अगला नाम डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद, चिकित्सा पदाधिकारी एसएनएमसीएच। डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद, चिकित्सा पदाधिकारी एसएनएमसीएच। इसी क्रम में अगला नाम श्रीमती शालिनी कच्छप, शालिनी कच्छप जो स्टाफ नर्स है एसएनएमसीएच की, शालिनी कच्छप। जोरदार तालियों से आप इनका उत्साहवर्धन करें, शालिनी कच्छप। इसी क्रम में अगला नाम अंजना बनर्जी, अंजना बनर्जी जो स्टाफ नर्स हैं एसएनएमसीएच की, श्रीमती अंजना बनर्जी। आप जोरदार तालियों से इनका उत्साहवर्धन करें, सम्मान करें। इसी क्रम में अगला नाम श्री संदीप रजक, श्री संदीप रजक, लिपिक एसएनएमसीएच, श्री संदीप रजक, लिपिक एसएनएमसीएच। इसी क्रम में अगला नाम श्री नील कमल महतो, कक्ष सेवक एसएनएमसीएच, श्री नील कमल महतो, कक्ष सेवक एसएनएमसीएच। पुलिस विभाग। इसी क्रम में अब हम सम्मानित करेंगे पुलिस विभाग के कर्मियों को, और इसी क्रम में सबसे पहला नाम श्री दीपक कुमार, अवर निरीक्षक गोविंदपुर थाना, श्री दीपक कुमार, अवर निरीक्षक गोविंदपुर थाना। जोरदार तालियों से आप इनकी उत्कृष्ट सेवा को नमन कीजिए, इनका उत्साहवर्धन कीजिए। इसी क्रम में अगला नाम श्री चंद्रशेखर सिंह, अवर निरीक्षक घनवा डीओपी, श्री चंद्रशेखर सिंह, अवर निरीक्षक घनवा डीओपी। इसी क्रम में अगला नाम श्री निरंजन प्रसाद गुप्ता, अवर निरीक्षक वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय धनबाद, श्री निरंजन प्रसाद गुप्ता, अवर निरीक्षक वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय धनबाद। इसी क्रम में अगला नाम अशफाक आलम, अशफाक आलम, अवर निरीक्षक मनियाडी थाना, अशफाक आलम, अवर निरीक्षक मनियाडी थाना। जोरदार तालियों से आप इनका उत्साहवर्धन करेंगे। इसी क्रम में अगला नाम श्रीमती अनीता मिश्रा, अनीता मिश्रा जो ट्रैफिक कार्यालय धनबाद से हैं, अनीता मिश्रा। श्रीमती अनीता मिश्रा हम सम्मानित कर रहे हैं, श्रीमती अनीता मिश्रा को एक जोरदार तालियों से आप इनका उत्साहवर्धन करें। इसी क्रम में अगला नाम श्री अशोक मंडल, श्री अशोक मंडल जो ट्रैफिक कार्यालय धनबाद से हैं, श्री अशोक मंडल। जोरदार तालियों से आप इनका उत्साहवर्धन करेंगे। अब बारी है कुछ कार्यालयों को सम्मानित करने का उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए, और इस क्रम में सबसे पहला नाम एसएनएम शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल धनबाद, एसएनएम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल धनबाद। अगला इसी क्रम में अगला नाम प्राइमरी हेल्थ सेंटर केंदुआडी धनबाद, प्राइमरी हेल्थ सेंटर केंदुआडी धनबाद के प्रतिनिधि यहां उपस्थित हों। प्राइमरी हेल्थ सेंटर केंदुआडी धनबाद, एक जोरदार तालियों से आप इनका उत्साहवर्धन करेंगे, सम्मान करेंगे। इसी क्रम में अगला नाम कम्युनिटी हेल्थ सेंटर झरिया धनबाद, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र झरिया धनबाद, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर झरिया धनबाद। अब बारी है स्वास्थ्य विभाग के कुछ कर्मियों को सम्मानित करने का, और इस क्रम में सबसे पहला नाम डॉक्टर मिहिर कुमार, डॉक्टर मिहिर कुमार प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी झरिया, डॉक्टर मिहिर कुमार प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी झरिया। इसी क्रम में अगला नाम श्री विश्वंभर राम सीएचसी निरसा, श्री विश्वंभर राम सीएचसी निरसा। इसी क्रम में अगला नाम श्री मिथिलेश कुमार सीएचसी तोपचाची, श्री मिथिलेश कुमार सीएचसी तोपचाची। इसी क्रम में अगला नाम श्री रामेश्वर कुमार साव पीएचसी तोपचाची, श्री रामेश्वर कुमार साव पीएचसी तोपचाची। इसी क्रम में अगला नाम निर्मला एएनएम मतारी तोपचाची,
निर्मला ANM मतारी तोपचाची, श्रीमती अंजू सिन्हा ANM जोगता बाघमारा, श्रीमती अंजू सिन्हा ANM जोगता बाघमारा। इसी क्रम में अगला नाम श्रीमती रेणु कुमारी ANM PHC राजगंज, श्रीमती रेणु कुमारी ANM PHC राजगंज। जोरदार तालियों से आप इनका उत्साहवर्धन करेंगे। इसी क्रम में अगला नाम श्रीमती राखी कुमारी CHO HSC धोबनी धनबाद, श्रीमती राखी कुमारी। श्रीमती राखी कुमारी CHO HSC धोबनी धनबाद। इसी क्रम में अगला नाम श्रीमती रीना देवी सहिया मनियाडी धनबाद, श्रीमती रीना देवी सहिया मनियाडी धनबाद सदर। इसी क्रम में अगला नाम श्रीमती उषा देवी सहिया जयनगर गोविंदपुर, श्रीमती उषा देवी सहिया जयनगर गोविंदपुर। श्रीमती बुबाई देवी सहिया दुर्गाडी टुंडी, श्रीमती बुबाई देवी सहिया दुर्गाडी टुंडी। शिक्षा विभाग से घनश्याम चौबे को एंकरिंग के लिए पुरस्कृत किया जाता है। एमली बासु। ये सम्मानित हो रही हैं एमली बासु, सुश्री एमली बासु बेस्ट एंकरिंग के लिए। परेड विसर्जन के लिए हम सभी तैयार हैं। सावधान। जय श्रीमान स्वतंत्रता दिवस आभास समारोह परेड समाप्त हुआ। आगे के लिए आदेश। द्वितीय समादेशक परेड के प्रभार में। अब बारी है आज के परेड में शामिल
जो प्लाटून्स हैं उनमें जो सर्वश्रेष्ठ 3 प्रदर्शन रहे हैं उन्हें सम्मानित करने का, और आज के जो प्लाटून शामिल थे उसमें सबसे प्रथम स्थान प्राप्त किया है सीआईएसएफ की प्लाटून ने। एक जोरदार तालियों से आप उनका उत्साहवर्धन करेंगे। अब बारी है जो उत्कृष्ट प्लाटून यहां उपस्थित थे उनको सम्मानित करने की, और इस क्रम में एसआई लखन राम जी सीआईएसएफ के प्लाटून कमांडर, सीआईएसएफ के प्लाटून कमांडर एसआई श्री लखन जी, आप यदि मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मंच के पास अविलंब चले आएं। और आज के परेड में जो द्वितीय स्थान जिस प्लाटून ने प्राप्त किया है वो है डीएपी जिला सशस्त्र पुलिस की महिला प्लाटून, और इसे लीड किया है एसआई वंदना हंसदा ने सीनियर ग्रुप में। और आज का जो तृतीय प्रदर्शन वाला प्लाटून रहा है वो आरपीएसएफ का है श्री रामलखन कुमार। आप तीनों मेरी आवाज सुन रहे हो तो मंच पे चले आए। सीनियर विंग में ये 3 प्लाटून्स थे, और जूनियर विंग में जो 3 प्लाटून ने बेहतर प्रदर्शन किया है उसमें सबसे पहला है भारतीय स्काउट एंड गाइड बालिका सुश्री अनीता कुमारी। एनसीसी गर्ल्स की द्वितीय स्थान इन्होंने प्राप्त किया है सोनाली कुमारी, और जूनियर विंग में तृतीय स्थान प्राप्त किया है भारतीय स्काउट एंड गाइड की बॉयज प्लाटून ने श्री अनंत कुमार जी। आप अविलंब मंच के पास चले आए, और अब बारी है, हम सम्मानित कर रहे हैं उन 3 प्लाटून जो सीनियर और जूनियर विंग से यहां आज के इस मुख्य स्वतंत्रता समारोह में उपस्थित हुए हैं। एक जोरदार तालियों से आप इनका उत्साहवर्धन करें। थर्ड आरपीएसएफ तृतीय स्थान प्राप्त किया है। आरपीएसएफ श्री एसआई श्री रामलखन कुमार, सब इंस्पेक्टर श्री रामलखन कुमार जी। जो जूनियर विंग के हमारे 3 पोजीशन होल्डर्स हैं उनमें सबसे पहला नाम भारतीय स्काउट एंड गाइड्स की बालिका प्लाटून अनीता कुमारी, द्वितीय स्थान एनसीसी गर्ल्स की सोनाली कुमारी, और तृतीय स्थान भारतीय स्काउट एंड गाइड के बॉयज अनंत कुमार जी। आज के इस परेड में शामिल इन प्लाटून्स में सबसे बेहतर सर्वश्रेष्ठ 3 प्रदर्शनों को हम आज सम्मानित कर रहे हैं आज के इस मुख्य समारोह में। जूनियर विंग से ये 3 प्लाटून कमांडर हम सम्मानित कर रहे हैं जूनियर विंग के इन 3 प्लाटून कमांडर्स को। एनसीसी गर्ल्स की प्लाटून कमांडर, जोरदार तालियों से आप इनका उत्साहवर्धन करें। और ये एनसीसी की प्लाटून कमांडर हैं। ये आज के जूनियर विंग के प्लाटून्स में 2nd पोजीशन होल्डर हैं सोनाली कुमारी। एनसीसी की प्लाटून कमांडर गर्ल्स प्लाटून की प्लाटून कमांडर सुश्री सोनाली कुमारी। आप सभी गणमान्य अतिथियों का आज के इस समारोह में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। आज के इस कार्यक्रम के समापन की औपचारिक घोषणा की जाती है।